हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरना इंग्लिश क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर। लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. So Nelson Mandela is delivering a speech here at the time of his oath taking ceremony and sharing his views, and he says here, in life every man has twin obligations. Obligation here means our duties, law binding a promise or responsibility. So every man has to fulfill those duties, those responsibilities towards his family, his parents, to his wife and children, and he has no obligation to his pupil. And here he means that he has no obligation to his pupil means public, log, janta, praja, his community, his country. And we sometimes feel that we have the duties which we have to fulfill for our family, but we don't have any duty towards pupil, which is incorrect. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. So every person has to do those obligations, means responsibilities, duties, according to his own inclination, means behavior, his nature, his abilities. Inclination, natural tendencies of behavior. So which we learn from our childhood, कि हमें अपने देश के, अपने लोगों के, अपने फैमिली के प्रति जो करना होता है उसको करने के लिए हमारा बिहेवियर कैसा है, या हमारी नेचर कैसी, हमारी आदतें कैसी, हम कितना कर पाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, जैसे अगर हमें सिर्फ इतना ही सिखाया गया है कि हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, और हम ये नहीं जानते कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को भी, या अपने घर के सड़क को, बाहर को, सबको ठीक रखना चाहिए। सराउंडिंग्स में वही सब आ जाता है। तो वो लोग जो नहीं सीखते वो कहीं भी गार्बेज इधर उधर फेंक देते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने आपको सिखाया। सो वी फुलफिल आवर ड्यूटीज़, दोज ऑब्लिगेशंस according to our inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations towards his family and towards his pupil, towards his country. So it was difficult. He says here that in the country like South Africa, at that time it was difficult, or it was impossible to fulfill both the duties. And especially for the pupil of his race, his color, his birth. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Means there was so much brutality, discrimination, that a person, a human being could not live a good life. If one tried to live that life, he was punished and isolated if he raised voice against this discrimination. In South Africa, a man who tried to fulfill his duties, his duty to his pupil, was inevitably ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. And if one tried to live that life, अगर वो कोई कोशिश करता था ऐसे जीवन जीने की, एक अच्छा जीवन जीने की, जिसमें वो समझ सकता था कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज ऑफ द रीन ऑफ अपार्थीड, वॉट वॉज डन विद हिम, ही वॉज राइप्ड ऑफ हिज फैमिली एंड होम. उसे कट ऑफ कर दिया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था उसे अपने घर से, अपने परिवार से. सो हियर यू सी द वर्ड इनएविटेबली, इट मीन्स अनअवॉइडेबली, अवॉइड ना करते हुए, अनअवॉइडेबली, ध्यान देकर. And another word is rebellion here, and who raise voice against the system of government, or try to do something, or sometimes when a person become violent doing so that is called a
rebellion. I did not in the beginning choose to place my pupil above my family, just like an ordinary person. He says that in the beginning I never kept my pupil above my family. उन्होंने लोगों को परिवार से ऊपर नहीं रखा. But in attempting to serve my pupil, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. But when he experienced it himself, when he tried to serve his pupil, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था इधर, उनको लोगों का जो ये ऑपरेशन था, टॉर्चर था जो किया जा रहा था, वो नहीं देख पा रहे थे. सो ही tried to do something for his pupil. He started serving his pupil. So what he found, क्या पाते हैं, that I was prevented from fulfilling. उनको रोका जा रहा था. जब वो सब चीज़ें पूरी कर रहे थे अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो he was prevented my obligation as a son. Means he was not able to fulfill duties towards his family as a son, as a brother, as a father and as a husband. It happens. जब आप अपने फैमिली के लिए सोच रहे होते हैं, क्योंकि तो आप अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन जब आप बाहर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको अपना पूरा समय अब उसमें देना होता है और आप बहुत कुछ अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the boat back of slow moving bulls. So what he says, he describes some of the activities of his childhood days, that when he says that he was not born with a hunger to be free. कि नेल्सन मंडेला को जैसा हम आज देखते हैं कि वो एक सोशलिस्ट हैं, वो एक सोशल रिफॉर्मर हैं, एंड ही फॉट फॉर हिज राइट्स, तो ऐसा वो शुरू से नहीं थे. वो यहाँ कहते हैं आई वॉज बॉर्न फ्री. वो कहते हैं मैं फ्री बॉर्न हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. जितनी चीज़ें उनको पता थी उस तरीके से वो फ्री थे. मीन्स वो अपनी माँ के घर के चारों तरफ घूमने फिरने के लिए, पेड़ों में घूमने के लिए फ्री थे, तैरने के लिए फ्री थे. कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे करते हैं, और वो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल फ्री थे. अपने गांव में स्ट्रीम में जो छोटी रिवर होती है उनमें खेलने कूदने के लिए वो बिल्कुल फ्री थे. और वो मिलीज़ रोस्ट किया करते थे. मिलीज़ मेज़ है ना, स्वीट कॉर्न, तो वो रोस्ट किया करते थे अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैक ऑफ स्लो मूविंग बोल्स. तो इस तरीके से वो बैल गाड़ी जब धीरे धीरे चलती है तो उन पर चला करते थे. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. एंड मतलब he had a normal life. He was obeying his father, living according to his customs and his tribes. Abide यानी उसके अंडर में रहना या रहना, मानना, obey करना. So he was obeying all that. He was living a life according to his tribe, his people. I was not troubled by the laws of man or God. He says that he was not troubled. He never tried at that time. He did not know anything about these laws or laws of man or laws of God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. मतलब उनका कहने का है कि ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पहले से ही इन चीज़ों के या लॉज के या इन चीज़ों के अगेंस्ट था, लेकिन उन्होंने कुछ महसूस किया जो उन्हें गलत लगा, जो उनकी ट्राइब्स के साथ, उनके लोगों के साथ गलत हो रहा था. सो हियर ही इज सेइंग it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. यानी उन्हें एक लड़के के रूप में, एक यंग लड़के के रूप में जो स्वतंत्रता मिली है वो एक तरह का धोखा है. illusion something that appears to be real but it is not, कि जो आपको रियल जैसा लगे लेकिन वो रियल ना हो, तो एक धोखा था, एक illusion. illusion यानी धोखा. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me.
when he got some maturity, understanding, then he came to know, उन्होंने जाना, he discovered, उन्होंने जाना that young man, as a young man, that my freedom had already been taken from me, कि अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, एक जवान आदमी के रूप में, एक एडल्ट इंसान के रूप में, उनकी फ्रीडम तो उनसे पहले ही ली जा चुकी है. He is not free, he was a slave. That I began to hunger for it, then he felt hunger for it. He yearned for it and he wanted to get that freedom. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night. कुछ ऐसी freedoms थी जो कि मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, परमानेंट नहीं थी. तो वो एक छोटी मोटी इस तरह की फ्रीडम चाहते थे कि वो अपने मन के हिसाब से रात को बाहर रह सकते हैं, read what I pleased and go where I choose, इस तरह की फ्रीडम्स. Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep. और उसके बाद जैसे जैसे वो मैच्योर हुए, बड़े हुए, तो जब वो जॉन्सबर्ग में थे एज अ यंग मैन, he had a strong desire, yearned यानी strong, having strong desire, longing, wish for the basic and honorable freedoms. वो basic freedoms को चाहते थे, और which is the dignity of a person, you know, that basic a man must be given the basic freedom because that is his dignity. So achieving my potential और earning my keep, वो क्या था कि जो उनके अंदर पोटेंशियल है, जो वो कर सकते हैं, टैलेंट है, तो उसको प्रूव करने के लिए फ्रीडम होना चाहिए. और अर्निंग माई कीप यानी वो इतना अर्न कर सके कि अपने खुद को रखने के लिए, चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी जो चीज़ें उन्हें ज़रूरी हैं उनको ख़रीदने के लिए वो अर्न कर सके. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ family, the freedom not be obstructed in a lawful life. So when he became a young man and he joined African National Congress Party, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. दोनों महसूस किया कि जो फ्रीडम है वो मेरी ही नहीं रिड्यूस की गई है, मेरी ही कट ऑफ नहीं है, बल्कि उनके जैसे सभी उनके भाई बहनों की, लोगों की थी. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, हियर ही मीन्स ब्लैक, उनकी स्किन से मतलब है जो उनके जैसा दिखता था, ब्लैक था और उनकी ट्राइब को बिलोंग करता था. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. और तब उनकी जो ये भूख थी फ्रीडम के लिए, वो उनकी सबसे बड़ी और मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उनका इस चीज़ को गया कि वो कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहते थे. फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस डिज़ायर for the freedom of my people to live their lives and dignity and self-respect, and that animated my life. And now he wanted a life which is full of dignity, self-respect, और उसमें वो कुछ animated महसूस करें, means which is live, जो सजीव हो, जो अच्छी हो. He wanted to make his life live, और हम ऐसे भी कर सकते हैं to breathe life in it. That transformed a frightened young man into a bold one. जिसने एक चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया यानी चेंज कर दिया, एक डरने वाले, एक नॉर्मल से यंग मैन को एक बोल्ड बना दिया, उसके अगेंस्ट फाइट लड़ने के लिए तैयार कर दिया. That drove a law abiding attorney to become a criminal. और उसने एक नियम कानून मानने वाले, नियम में रहने वाले, लॉ अबाइडिंग, वन हु फॉलोज रूल्स रेगुलेशंस. अटॉर्नी यानी वो एक एडवोकेट बनना चाहते थे, एक ऐसे इंसान को क्या कर दिया, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया. क्रिमिनल किस सेंस में, बिकॉज ही फॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज टाइम फॉर हिज पीपल. तो ये जो लड़ाई थी उसमें उन्हें हर तरीके से लड़ना था, आगे आना था. तो इन दिस वे ही बिकेम रेबेलियन, ही बिकेम अ क्रिमिनल. That turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. और एक परिवार वाले हस्बैंड को बिना फैमिली का बना दिया, मॉन्क बना दिया. एंड मॉन्क एक मतलब जो साधु जैसे होते हैं, जो अपने घर से निकल जाते हैं और
अपने कामों में लग जाते हैं, लाइफ लविंग को, यानी लाइफ के प्रति अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको वो सारी जो ऑब्लिगेशंस थे अपने कंट्री के प्रति, अपने लोगों के प्रति, वो पूरे करने थे, अपनी ट्राइब के लिए. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. सो describing his experience, sharing his experience, he further says that he was just like an ordinary person as we have. The next man से मतलब है हम ordinary, जैसे कि अक्सर लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं एक आम इंसान की तरह, जो कि वर्चुअस होते हैं, ज़्यादा वर्चुअस नहीं होते हैं और ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं होते हैं. पहले हम अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में ये सब सोचते हैं, तो ऐसे ही वो भी थे. मीन्स ही वॉज नॉट दैट मच righteous or just or moral, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chain on any one of my people were the chains on all of them. The chain on all of my people were the chains on me. So he wanted freedom not only for himself but for his people, for his country, and he wanted to be liberated. वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते थे जब उन्होंने ये महसूस कर लिया कि ये जो फ्रीडम है वो पूरी एक चेन है और कोई भी उनकी ट्राइब में हर व्यक्ति उस को वो फ्रीडम नहीं दी गई है. तो वो कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए. तो उन्होंने महसूस किया कि जो चेन उनके लोगों से चली आ रही है, यानी वो लोग उसको अलाउ नहीं है उनकी ट्राइब को, तो सेम उनके साथ भी होना था. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. एंड बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे उन्होंने एक विचार दिया, एक आइडिया दिया है कि वो कहते हैं कि ऑप्रेसर भी लिबरेटेड नहीं है, यानी वो भी आज़ाद नहीं है जो किसी पे अत्याचार कर रहा है दूसरे पे, है ना. सो अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर और हेट्रेड. जो इंसान किसी दूसरे इंसान की स्वतंत्रता को कर्टेल करता है, फ्रीडम को कर्टेल करता है, तो ही इज़ ऑल्सो अ प्रिजनर, यू नो, ऑफ हेट्रेड. प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो भी घृणा का स्लाव है ना. उसको भी घृणा ने यानी नफरत ने उसे भी जकड़ रखा है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. ही इज़ ओवरपावर्ड बाय द नैरो माइंडेडनेस, बाय प्रेजुडाइस. प्रेजुडाइस अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, यानी आप बिना कुछ अच्छा रीज़न होने के बाद भी दूसरे को हेट करते हो, डिसलाइक करते हो चीज़ों को, एंड यू हैव नो रीज़न वाई यू आर डूइंग दैट. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइस. सो अ पर्सन who kills others' freedom, who hates others' who hate others without any proper reason, or he is narrow-minded, so he is overpowered by narrow-mindedness, prejudice. He has become the slave of narrow-mindedness, prejudice and hate. वो इन सब चीज़ों का गुलाम बन जाता है और वो भी उसी की तरह हो जाता है. ही इज़ ऑल्सो ऑप्रेस्ड बाई दीज 3 evils, है ना. उनके मंडेला सेज हियर. सो वो यहाँ पे ऐसा समझा रहे हैं. ये देखो बच्चों, ये बहुत ही गहरी बात है. अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं. एंड यू विल नेवर बी overpowered, or you will never be the slave of these rubbish, you know, prejudice, narrow-mindedness, hate. So he says, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम को किल करता हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे विचार फ्री नहीं है, मैं एक सही इंसान नहीं हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. In the same way, a person who is snatching away others' freedom, he is also not free in the same way as the person whose freedom is snatched away, है ना, whose freedom is curtailed. The oppressed and the oppressor alike are robbed. So they both are robbed, oppressed and the oppressor. Oppressor ऐसा सोचता है कि वो उनसे बहुत ऊपर है,
क्योंकि वो अत्याचार कर रहा है दूसरों पे, दूसरों को ऑप्रेस कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो उसको डीपली सोचे तो ही इज़ ऑल्सो ऑप्रेस्ड। अभी जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ों से वो भी गुलाम बन चुका है, क्योंकि ऑप्रेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड बोथ आर robbed by their humanity. So what do you understand? That according to Nelson Mandela, like the oppressed, the oppressors are not free, because oppressed don't have basic rights, and there is no respect in his life, no dignity in his life. He has to face what? Only cruelty, brutality, slavery, and he is tortured, he is oppressed. However, even the oppressor is not free. In the same way, he says that oppressor is also not free. Oppressor भी free नहीं होता है, because वो भी क्या है? गुलाम है उस घृणा का, जिस घृणा की वजह से वो दूसरों को ऑप्रेस कर रहा है. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड दैट बार्स. प्रिजन से मतलब है, प्रिजन यानी जेल, बार्स वो भी बार्स के पीछे है, जे सलाखों के पीछे है. और वो सलाखें किस चीज़ की हैं? वो हैं प्रेजुडिस, नैरो माइंडेडनेस, हेट्रेड. सो क्या मेन टीचिंग, फाइनल जो कंक्लूज़न है यहाँ पे चैप्टर का, कि लास्ट में उन्होंने जो कंक्लूज़न निकलता है वो यही है जो हम अक्सर टीच करते हैं सभी लोग, सभी रिलीजन, दैट वी शुड स्प्रेड लव, अंडरस्टैंडिंग, ब्रदरहुड, नॉट हेट्रेड, नॉट हेट. घृणा को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए. और सेंसलेस जो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रेजुडिस है, और ये एक तरह का ईगो होता है, यू नो, जिससे प्रेजुडिस की जो फीलिंग है इंसान को ओवर पावर कर लेती है, और वो नैरो माइंडेड हो जाता है. वो दूसरों को, या कुछ इस तरह की एक जेलसी लोगों में होती है कि वो दूसरों को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, खुश नहीं देख पाते हैं. वो एक सेंसलेस होती है, रबिश होती है, वो यूज़लेस होती है. ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत सारी इसके बाद बहुत लंबी स्पीच भी हो सकती है कि हम सब इक्वल हैं, हमें वी शुड बिलीव इन इक्वलिटी, गॉड हैज़ मेड अस equal, so we all are same, and we all should love each other and follow brotherhood. चैप्टर तो हम यहाँ फिनिश कर चुके हैं, लेकिन अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूस मुझसे जुड़े रहते हैं, और भी जो सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मुझे, और वो क्वेश्चन आप पूरा टाइप कर सकते हैं जिसमें आप कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं. तो मैं एक नेक्स्ट सेशन में वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं वो कवर अप कर लेंगे हम, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको. और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स आप कर पाते हैं तो वो और भी अच्छी बात है. इवन जब हमारी लाइव क्लास होती है तो तभी भी आप वो मुझे क्वेश्चन आंसर दिखा सकते हैं, और मैं आपको उसमें करेक्शन भी कर दूंगी. तो और भी जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, जो सुन रहे हैं मुझे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. कोई चीज़ अगर उनके समझ में नहीं आई है चैप्टर से, कोई थॉट है, कोई एक्सप्रेशन है जो मिस्टर मंडेला का है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए. नोटिफिकेशन, अगर आपने बेल आइकन हिट किया है, अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, तो उसे प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख लें.